Namaste. I, JVN Neha Sharma, JVWU Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So in previous lecture, we discussed about network layer and the design issues with network layer and the functionality of network layer. So in this topic, in this lecture, we are studying about circuit switching and packet switching. So in this lecture, we are discussing what is circuit switching and packet switching, and what are the differences between the circuit switching and the packet switching. So let's start. So circuit switching is a connection-oriented network switching technique. Here, a dedicated route is established between the source and the destination, and the entire message is transferred through it. So basically, it is a connection-oriented network switching technique in which you have a source and a destination, and you have to transmit the data packets. So you have to first establish the connection with the destination, then you transfer your data packet, and then after your communication is finished, your data transfer is finished, you have to disconnect that connection. So this is basically the concept of connection oriented network. We already studied this connection oriented and connection less in previous lectures. So this is circuit switching is based on connection oriented network switching technique, and the phases of circuit switch technique or to say connections are: first, circuit establishment; second, data transfer; and third is circuit disconnection. So basically, this is working on the three-way handshaking protocol. So basically, what is the three-way handshaking? Basically, source destination को पहले रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की, उसके बाद डेस्टिनेशन जो है उसे एक्नॉलेज करेगा, उसे एक्नॉलेज भेजेगा वापस सोर्स को एक्नॉलेज होने के बाद में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर सोर्स क्या करेगा, अपना डेटा पैकेट भेजेगा, मतलब डेटा ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में डेस्टिनेशन उसे रिसीव करेगा, और जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट जाएगी और कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा. So this is basically the whole concept of the connection oriented circuit switching method. So in this, here you can see first is circuit establishment. In this phase, a dedicated circuit is established between source and destination through a number of intermediate switching centers. In between source and destination के switching centers होंगे. अगर हम कोई भी ट्रेन या बस लेते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं, ठीक है. लाइक वाइज हेयर यू कैन सी द स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सर्किट्स जो है इंटरमीडिएटरी रहेंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच. And the sender and receiver transmit communication signals to request and acknowledge establishment of circuits. उसके बाद में जब उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, मुझे आपके साथ में सर्किट इस्टेब्लिशमेंट करना है सोर्स ने डेस्टिनेशन को, तो डेस्टिनेशन ने क्या की, एक्नॉलेजमेंट भेज दी. सेकेंड इज डेटा ट्रांसफर. सो जब एक बार हमारा सर्किट इस्टेब्लिश हो गया, अब हमारा काम क्या है, डेटा ट्रांसफर का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. और जब हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो दिस कनेक्शन इज इनिशिएटेड बाय एनी वन ऑफ द यूजर, either by source or by destination. We can take here the example of phone call. So in phone call, what we can do here is first we dial the number. So if the line is free, then we are connected to the person, right? And if line is busy, the notification arrive, line is busy, you have to call later, right? So if line is free and my connection is established with the person to whom I dial the number, so I am connected with that person, right? So after my chit chat over with that person, even either I or that person disconnect that phone. So basically, likewise here, first is circuit establishment, that is call making. Second is data transfer, which is the communication between source and destination. And third one is circuit disconnection, which is call disconnection, which is either by the source or the destination. So this is how the circuit switching working here. The circuit switching connection and circuit switching mechanism are working here. So diagrammatic representation of circuit switching in telephone, you can see here the
These are the blue boxes are the switching office's intermediate nodes, or to say between source and the destination. And these are the permanent connections, which are in black. And the connections which are in white is optimized by the routing algorithm in network layer. So this is the shortest optimal path to communicate to a destination and make a connection establishment. So here you can see in white one, so the path for communication between source and destination is this. Like it starts from here, then go here, then here, and then to the destination. So this is how circuit switching is working, right? So when connection requested, link are established within the switching offices, denoted by the white dotted line in a manner so that dedicated circuit is established between the communicating parties. These links remain as long as communication continues. This link is what? Network, right? So what are the advantages and disadvantages of सर्किट स्विचिंग? एडवांटेजेस क्या है कि लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है ये, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता रहेगा, इंटरमीडिएट डिले नहीं हो सकता, क्योंकि एक डेडिकेटेड कनेक्शन हमने स्टैब्लिश कर दिया है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में। तो और कोई उस बीच में अगर करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर और कोई उस कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट जब आपका हो चुका है और आपको कोई और पर्सन भी कॉल कर रहा है, तो आपके ऊपर है कि आप वो कॉल लेंगे कि नहीं लेंगे, पर वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि इन बिटवीन ही उसकी कॉल शुरू हो गई है। तो इसलिए ये सुटेबल है लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन के लिए। द डेडिकेटेड पाथ इंश्योर्स अ स्टडी डेटा रेट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ है तो कंटिन्यूसली डेटा जो है वो इन मतलब इन ऑर्डर में हमारा डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ ऑर्डर जाएगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ है उसी से ही हम सारा डेटा हमारा ट्रांसफर कर रहे हैं। And third one is no intermediate delay are found once the circuit is established. So they are suitable for real-time communication of both voice and data transmission. क्योंकि डिले नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर चैनल नहीं है, डेडिकेटेड चैनल है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है, वन टू मैनी नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन है तो अगर डेटा लोड कम भी हुआ तो बैंडविड्थ वेस्ट होगी, ठीक है, और कोई और डेटा उसे भेज नहीं सकता। सेकेंड इज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हायर इवन इन केस ऑफ लो डेटा वॉल्यूम, क्योंकि हमें रिलायबल कनेक्शन चाहिए और हमें एरर फ्री डेटा चाहिए, इसके लिए हमारी बैंडविड्थ जो होगी वो हाई रहेगी। There is underutilization of system resources once resources are allocated to a particular connection. They cannot be used for other connection. Of course, जैसे कि मैंने बोला कि हमें एक बार जब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया सामने वाले के साथ में कॉल पे, तो दूसरा कितनी ही बार उसे कॉल करता रहे उस पर है कि वो उसकी कॉल लेगा या मिलेगा नहीं, तो उसको क्या मिलेगा? लाइन बिजी, यू हैव टू कॉल लेटर, राइट? सो दिस इज वन टू वन कनेक्शन, तो और कोई चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर सकता। टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन मे बी हाई, हो सकता है अगर वो ऑलरेडी बिजी है तो जो टाइम रिक्वायरमेंट है कनेक्शन की वो हाई हो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स के कारण भी टाइम लग जाता है कनेक्ट होने में कॉल, या फिर अगर इंटर स्विचिंग हो रही है जो जिससे आप कॉल कनेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद स्विचिंग हो रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तब भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बैड वेदर में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पर एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो डेटा है उस ट्रांसमिशन में उसमें डिले हो, ठीक है। Second is packet switching. So packet switching is connectionless network technique. So in connection oriented and connectionless, we have already studied the basic concept, and here also we're discussing this. Like in connection oriented, there is a dedicated path before sending data, but in connectionless, there is no dedicated path, or to say no connection establishment before sending the data to the destination. So there is no need to establish a dedicated circuit for communication. इसीलिए कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल होता है, कनेक्शन लेस लेस रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें एरर फ्री डेटा नहीं जा सकता, हम उसमें एरर डिटेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पैकेट आउट ऑफ फ्रेम हो सकता है, क्योंकि
एक ही पाथ से हमारा डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नहीं जा रहा है, रैंडमली चूज हो रहा है, जो भी उसको फ्री मिल रहा है वहां से उसको डेटा मिलता रहेगा रिसीवर को। ठीक है। इस बीच हो सकता है कि कोई क्रिटिकल डेटा जो है उसका लॉस हो जाए, कोई डेटा पैकेट है जिसमें क्रिटिकल डेटा है उसका लॉस हो जाए, क्योंकि हम एक डेडिकेट पाथ से डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और एरर चेकिंग भी इतने रिलायबल नहीं है। तो कनेक्शन लेस नेटवर्क स्विचिंग वहीं यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करनी है जनरली। So here the passage is divided into the groups. In packet switching, it is connectionless and message is divided and grouped into number of units called packet that are individually routed from source to destination, and there is no need to establish a dedicated circuit for communication. So each packet in packet switching technique has two parts, header and the payload. This is also we are discussing in Ethernet and IEEE and IEEE 802.3, 802.5 that there is a header and a payload. So payload consists actual data and header consists the address of the destination. अगर हम कभी कोई कोरियर भी भेजते हैं तो हम उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, ताकि उसे पता रहे भेजने वाले को, जितने भी इंटरमीडिएट पोस्ट ऑफिस आएंगे हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में या डायरेक्ट भी अगर जाएगा तो एड्रेस तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम ईमेल भी करते हैं तो भी हम उसमें अगर हमें डेस्टिनेशन जिसको हमें ईमेल भेजना है उसका एड्रेस नहीं पता होगा, ईमेल एड्रेस, तो हम ईमेल कैसे भेजेंगे। तो likewise here, so in header contain the addressing information of the packet and is used by the intermediate routers to direct it towards its destination. And payload carries the actual data. Packet is transmitted as soon as it is available in a node based upon its header information. The packet of a message are not routed via the same path. क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ है नहीं, तो जो भी उसको फ्री मिलेगा उससे वो मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन पे अराइव हो जाएगा। एंड द पैकेट ऑफ या so the packet in the message arrive in the destination out of order, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जो है इसका डेटा जा रहा है। हम इसको एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे चार डेटा पैकेट्स है ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर है डी सी बी है। अब ए जो है वो ग्रीन वन में है, बी है येलो वन, सी है ब्लू वन एंड डी है रेड वन। तो आप देखो कि चारों जो है वो अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, एक पाथ से नहीं जा रहे हैं रिसीवर के पास में। तो अगर मैं देखूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर किसी का है तो सबसे पहले इसके पास में सी आएगा, फिर ए आएगा, नहीं फिर बी आएगा। अगर शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाए तो सी बी देन डी और ए, इस तरीके से कुछ आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास में आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आया, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी रिसीवर को अगर उसे इन ऑर्डर में पैकेट चाहिए तो। So this is basically packet switching and advantages क्या है पैकेट स्विचिंग के, कि इसमें डिले कम होगा क्योंकि पैकेट जो है वो वैसे ट्रांसमिट हो रहा है, वेट नहीं करना पड़ रहा उसको, डेडिकेटेड पाथ क्योंकि है नहीं यहाँ पे तो सबके लिए फ्री है। जैसे उसको अवेलेबल मिलेगा नेटवर्क वो क्या करेगा अपना पैकेट सेंड कर देगा उस राउट से। Switching devices don't require massive storage since they don't have to store the entire message before forwarding them to next node. तो पैकेट स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक अप्लाई नहीं होती है, ये वेट नहीं करेगा पूरे मैसेज को स्टोर करने का और उसके बाद भी उसको फॉरवर्ड करे, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे उसको डेटा मिलता जाएगा वो अपने इंटरमीडिएट नोड्स को ट्रांसफर करता जाएगा, रुकेगा नहीं, वो तो डिले भी नहीं होगा। और डेटा डिलीवरी कैन कंटिन्यू इवन इफ सम पार्ट्स ऑफ नेटवर्क फेसेस लिंक फेलियर। अगर एक राउट फेल हो भी गया तो बाकी राउट से तो मैसेज जाता जाएगा, डेटा ट्रांसमिट होता जाएगा। तो इसमें यह है कि डेटा डिलीवरी जो है वो विदाउट बैरियर विदाउट एनी फेलियर लगातार चलती रहेगी। पैकेट्स जो हैं अगर एक पाथ हमारा फेल हो गया है, एक राउटर हमारा उसका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो फेल हो गया है, तो बाकी जो भी होंगे उससे हमारा पैकेट ट्रांसमिशन हो जाएगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। It allows simultaneous usage of same channel by multiple users of course, क्योंकि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कनेक्शन तो है नहीं वन टू वन, तो ये ओपन है सबके लिए, जिसको जब भी भेजना हो जो भी फ्री मिले, जो भी नेटवर्क उसे फ्री मिलेगा
जो भी नेटवर्क चैनल उसे फ्री मिलेगा उससे भेज देगा। तो सेम चैनल है, मल्टीपल यूजर्स के लिए ओपन है, जिसको भी फ्री मिले वो भेज सकता है डेटा। इट इंश्योर्ड बेटर bandwidth usage as a number of packet from multiple sources can be transferred via the same link। क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ वेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम वेट तो कर ही नहीं रहे किसी चीज़ का, कोई डेडिकेटेड पाथ है नहीं। जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है हम आगे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि बैंडविड्थ यूसेज भी हाई रहेगा, बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि they are unsuitable for the application that cannot afford delay in the communication like high quality voice calls। अगर इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ ऑर्डर पिन चले जाए या डेटा लॉस हो जाए तो उसके कारण डिले हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हाई क्वालिटी वॉइस कॉल्स मतलब जो रिलायबल कनेक्शन अगर हमें चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन हमें चाहिए, तो उसके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसके लिए हम सर्किट स्विचिंग यूज़ करेंगे। पैकेट स्विचिंग की इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हाई होती है क्योंकि सेम चैनल पे मल्टीपल यूजर्स को वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। दे रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरी ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम टाइम पे अलग अलग राउट से डेटा पैकेट्स जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है डिलीवरी के लिए, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ तो है नहीं जिससे डेटा जा रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी एरर पैकेट्स को। तो नेटवर्क प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस एरर इन पैकेट्स, डिले इन डिलीवरी ऑफ पैकेट, लॉस ऑफ पैकेट इफ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड, दिस में लीड टू लॉस ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, रिलायबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, so this is basic advantages and disadvantages, and what are the difference between circuit switching and packet switching। circuit switching connection oriented है, packet switching connection less है, इसमें dedicated path है, इसमें dedicated path नहीं है। ये inflexible है क्योंकि इसमें एक ही dedicated path से सारा डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा, पर इसमें पैकेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से डेस्टिनेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो है फ्लेक्सिबल होता है। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में वॉइस ट्रांसफर के लिए डिज़ाइन किया गया था और पैकेट स्विचिंग को डेटा ट्रांसफर के लिए डिज़ाइन किया गया था। सर्किट स्विचिंग में इंटायर मैसेज जो है वो इन ऑर्डर रिसीव होता है, इसमें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। एंड सर्किट स्विचिंग में स्पेस डिवीजन स्विचिंग, टाइम डिवीजन स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग में डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट्स है। सर्किट स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए वही नहीं होता, स्टोरेज के लिए इसके पास मेमोरी नहीं होती है, इसलिए डेटा इज प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड एट द सोर्स ओनली, डेटा इज प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड नॉट ओनली एट द सोर्स बट ईच स्विचिंग स्टेशन। These are suitable for long continuous, these are unsuitable for long continuous transmission। डिले हो सकता है इसमें, एक बार आउट स्टैब्लिश हो गया तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। दिस लीड्स टू पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट अलाउज साइमल्टेनियस यूसेज ऑफ सेम चैनल बाय मल्टीपल यूजर्स। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसकी हाई है, इसकी कम है। इन इवन इन केसेस ऑफ लो डेटा वॉल्यूम इसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें बैंडविड्थ यूसेज जो है वो बहुत ही अच्छे से होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड विया द सेम लिंक। तो इसमें बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती है हमारी। इसमें टाइम चाहिए होता है कनेक्शन को, क्योंकि हमें पहले इस्टेब्लिश करना है। इसमें डिले हो जाता है क्योंकि हमारा पैकेज जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, कभी कभी वो ऑप्टिमल पाथ नहीं ले पाते, लंबे पाथ से पहुंचता है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है, पैकेट स्विचिंग की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। द प्रोटोकॉल फॉर डिलीवरी आर रिलेटिवली सिंपल, इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। सर्किट स्विचिंग रिलायबल है और पैकेट स्विचिंग लेस रिलायबल है। So this is all about circuit switching and packet switching. Thank you so much.